Your mind is interpreting the messages which come from the brain. Like I told you, the brain is the receiving instrument of the mind. Like the bulb is the receiving instrument for light. Bulb is not light, light is not bulb. So the brain is giving signals. The mind says this is true. Mind says, it starts reading those signals and it says this is pain. If you like Amitabh Bachchan and you watch him on the screen, again signals are generated. Mind says this is joy. Amitabh Bachchan, my favorite hero, has come. I am happy now. Okay? All the experiences, whether anger, frustration, joy, everything is in the mind. That is, we think we are living in the world, actually we are living in our minds. If you are enjoying the experience, that is an experience in the mind. If people are fine, somebody may find it not so enjoyable, that's the experience in their mind. Every experience, no matter where you think it is actually in your mind. And this is the reason. Now, what is the scientific evidence to this? See, when they give you, when somebody is in an operation theatre, they give them anesthesia. Once they give you anesthesia, even if they cut you open, there is no pain. Why? What does anesthesia do? Anesthesia cuts the connection between your nerve fibers and the brain. So when there is no signal going to the brain, mind is seeing nothing to interpret. Anesthesia, so long as the effect of the anesthesia is there, nerve fibers are not transmitting any message to the brain. So when no messages are going to the brain, even if they cut you open, they cut your stomach wide open, you are not screaming. Because no signals in the brain, mind says nothing to interpret. The moment the signals come to the brain, the mind starts interpreting. What is the signal? This is pain. And the moment the anesthesia effect is over, all the pain starts. Then they have to give you painkillers. Because then the signal starts. So this is the example. Okay? Done. Big round of applause for us. Done. ये आज का जो हमारा सेशन था वालिया स्कूल ऑफ मैनेजमेंट में, ये बहुत ही दिलचस्प और मज़ेदार सेशन था। इसमें चर्चा का विषय था लीडरशिप, एथिक्स एंड कॉर्पोरेट सक्सेस। तीनों जो शब्द इस टाइटल में आया है वो बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है इन बच्चों के लिए आगे जाके जीवन में। सभी लोग चाहते हैं कि वो आगे अपने करियर में किसी न किसी क्षेत्र में लीडर बने। सभी लोग चाहते हैं कि सक्सेस मिले उन्हें, लेकिन बहुत कम लोग ये जानते हैं कि लीडरशिप और सक्सेस का हासिल करने का तरीका क्या होता है, इसका साइंटिफिक तरीका क्या होता है। तो आज हमने ये प्रयास किया है इस सेशन के माध्यम से कि इनको उस तरह की जानकारी दिया जाए मनी के बारे में, लीडरशिप के बारे में और सक्सेस के बारे में, जो कोई भी करिकुलम और सिलेबस का हिस्सा नहीं होता है नॉर्मल ट्रेनिंग में। और वही प्रयास आज सुबह हमने किया है। और हमने जो उदाहरण दिए बच्चों को, हमने जो उनको लाइव एक्सपेरिमेंट्स किए उनके साथ, उन्होंने बहुत एंजॉय किया उसको। उसमें हर के पार्टिसिपेशन भी हुआ बच्चों की तरफ से और उनके सवाल बहुत दिलचस्प थे। लाइन ऑफ क्वेश्चनिंग बड़ा इंटरेस्टिंग था, जिसके कारण आगे जाके ये समझ में आता है कि ये लोग अपने अपने क्षेत्र में, चुने हुए क्षेत्र में जरूर कुछ ना कुछ बड़ा करेंगे। हमारा सेशन का ओरिजिनल प्लान था कि ये 1 घंटा चले, लेकिन करते करते 2 घंटे तक चला सेशन। और ये उनकी इन्वॉल्वमेंट है और उनके जो होते सब्जेक्ट में जो दिलचस्पी होती है, रुचि होती है, उसी के कारण ये सेशन 2 घंटा चला। मैं सभी को शुभकामनाएं देता हूँ, सभी बच्चों को वालिया स्कूल ऑफ मैनेजमेंट का, कि आने वाले सालों में वो जरूर अपने मैनेजमेंट स्कूल का नाम रोशन करेंगे और जीवन में कुछ बड़ा करेंगे। बहुत मजा आया आज इस सेशन में। थैंक यू सर। जानना चाहेंगे, आपने बच्चे के सवाल पे थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल दोनों ही बताया। हाँ, एग्जाम्पल में जी। तो किस थ्योरी पे अपने ये जी, तो कोई भी थियरी का कोई मतलब नहीं होता है जब आप प्रैक्टिकली जीवन में उसका अनुभव नहीं लेते हैं।
तो इस दृष्टिकोण से तो हमने जब सेल्फ बिलीफ की बात की मिसाल के तौर पे कि अपने आप पे एक विश्वास होना बहुत जरूरी है, तो हमने उनको बड़ी दिलचस्प कहानियां अमिताभ बच्चन साहब की, बिल गेट्स की, नारायण मूर्ति साहब की, रतन टाटा साहब की सुनाई, जिससे उनको एक प्रेरणा मिली कि ये सब लोग अगर अपने आप पे भरोसा रख के जीवन में बड़ा काम कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। और उसके बाद हमने उनको एक लाइव डेमो दिया। सेल्फ बिलीफ जब आप अपने साथ रोज जीवन में उसका इस्तेमाल करेंगे तो एक्सपेरिमेंट के माध्यम से किसी एक विद्यार्थी को हमने सामने बुलाया और उसको कुछ करवाया हमने उस जगह पे, जिससे उसको पता चला कि उसका माइंड जब बिलीव करता है कुछ चीज होगा तो कैसे होता है, उसका परिणाम कैसा अलग हो जाता है। तो वही वो लाइव एक्सपेरिमेंट का उद्देश्य था कि एक तो होता है कि आपने एक दिलचस्प कहानी सुनी, कहानी सुनने में अच्छी लगी और ऐसा भी लगा कि शायद ये हमारे साथ भी हो जाए, लेकिन जब आप व्यक्तिगत तौर पे अनुभव लेते हैं कि ये मेरे साथ हुआ है तो उसका सीख ही अलग हो जाता है। तो इसीलिए हमने हर एक जो उनको तथ्य दिए हैं, जो भी उनको थियरी दी है, हर एक का हमने एक व्यक्तिगत अनुभव भी उसके साथ जोड़ा है ताकि उनका भरोसा उस चीज पे बहुत गहरा रहे और उसी भरोसे के साथ वो जीवन में आगे बढ़े। सर, स्टूडेंट से आपका क्या मैसेज रहेगा माइंड सेट के ऊपर? माइंड क्या, सॉरी? माइंड सेट। हाँ, माइंडसेट वही जो आप सोचते हैं। अगर आप अच्छा सोचते हैं तो अच्छा होता है, बुरा सोचते हैं तो बुरा होता है। अगर आप एक रूम में आके अगर आपकी इस जगह की खूबसूरती के बारे में आपका ध्यान ज्यादा रहता है तो आपकी जीवन में बिल्कुल उसी तरह काम करता है जैसे आप जीवन में क्या क्या देखते हो इर्द गिर्द। खूबसूरत चीजों और अच्छी चीजों पे आपका अगर ध्यान ज्यादा केंद्रित होता है वही आपके जीवन में सच्चाई बन के उभरती है। अगर आप नेगेटिव चीजों पे ध्यान ज्यादा देंगे, तकलीफों पे ज्यादा ध्यान देंगे, प्रॉब्लम्स पे ज्यादा ध्यान देंगे तो वही आपके जीवन में बड़ा होता है। ये सच मैंने उनको समझाने की कोशिश की और वो समझ भी गए हैं मेरे हिसाब से कि आपका मन का ध्यान किधर है, अच्छा बुरा, प्रॉब्लम भरा या सुकून भरा। सर, कितना जरूरी स्टूडेंट्स में लीडरशिप की है? बहुत जरूरी। अभी तो सब जगह जेंसी की चर्चा चल रही है तो जोश तो है, लेकिन जोश के साथ हमारा प्रयास रहता है जेंजी या कोई भी नौजवान हो उनको अपना होश का भी ध्यान रखना चाहिए, मन का ध्यान रखना चाहिए। जोश अपनी जगह पे बहुत अच्छा है, ऊर्जा बहुत अच्छा है, लेकिन ऊर्जा को जब तक कोई दिशा नहीं मिलती है वो ऊर्जा आग बन के अपने आप को भी जला सकती है या समाज को भी जला सकती है। तो ऊर्जा को दिशा देने का काम मन करता है, इसलिए मन का ज्ञान रहना बहुत जरूरी है। और हमने इसीलिए उन सबको अपील की कि अपने अपने जीवन में मन के बारे में सीखने की जरूर कोशिश करें और ऊर्जा की मूवमेंट के बारे में सीखने की जरूर कोशिश करें। यही ऊर्जा आपका खाना भी पका सकता है आग, और वही आग आपका घर भी जला सकता है। उसकी दिशा तय करती है कि परिणाम क्या होगा। ओके सर, थैंक यू सर।